channel again. Today we read about the chapter 1, The Wonderful World of the Science of the class 6th NCERT book. The book name is Curiosity. Now we start the chapter. As human beings, we have always been curious about our surrounding. जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें सब चीज़ों की उत्सुकता रहती है कि हम सभी चीज़ों को जानें. We start exploring our surrounding and asking questions right from our childhood. हम अपने आले दुआले सराउंडिंग के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं बचपन से. इस लाइन का मीनिंग है कि जब आपने मज़े किए हैं डिस्कवरिंग और एक्सप्लोरिंग में दुनिया की प्रिपेयरिंग स्टेज, मतलब आप जब प्रिपेयर हो रहे थे बड़ी क्लासें के लिए, जब आपने मज़े किए हैं. As you enter in the middle stage, we will continue his fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in. And for that, we have a new subject, science. We'll welcome to the wonderful world of science. जब हम बेसिक क्लासेस से हम अभी मिडिल क्लासेस में आए हैं और हम कंटिन्यू करते हैं सुंदर जर्नी को, एंड कभी हमने उसको एक्सप्लोर और समझने की कोशिश की है सुंदर दुनिया को जहां हम रहते हैं. और समझने के लिए हमारे पास एक न्यू सब्जेक्ट है, उसका नाम है साइंस. वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द साइंस. Science is a way of thinking, observing, and doing things to understand the world we live in and uncover the secrets of the universe. Think of it as a big adventure. We ask questions, explore the world, and try to understand how things work. For this, the most important thing is to have curiosity, which is where the title of a book comes from. अभी यहाँ साइंस की डेफिनेशन दी गई है. साइंस एक वे है थिंकिंग, सोचने का, ऑब्जर्व, सीखने का और कुछ करने का, और जिस हम दुनिया में रहते हैं उसके बारे में जानना और जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसके सीक्रेट अनकवर करना. इसको आप एक बिग एडवेंचर मानो जहां हम क्वेश्चन पूछते हैं, सीखते हैं दुनिया को. इसलिए सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है वो है उत्सुकता, जो इस बुक का नाम भी है. यहाँ साइड पर एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ अ साइंस. इसका आंसर है, साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड the world we live in and to uncover the secrets of the universe. Next, whether it is studying teeny grains of sand and massive mountains, a leaf of grass and vast forests, there is always something new and exciting to discover. Have you ever looked up at the night sky and wondered why the stars shine? Or watched a flower bloom and wondered how it knows when to be open? जब भी हम सैंड के टीने पार्टिकल्स के ऊपर स्टडी करते हैं या लार्ज माउंटेन्स के ऊपर स्टडी करते हैं, या हम एक पत्ते के बारे में स्टडी करते हैं या एक बड़े से फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं, इन सब में कुछ नया है डिस्कवर करने में. या आपने आसमान में तारे देखे हैं तथा आपने एक फ्लावर को खिलते हुए देखा है. क्या आपने सोचा है कि फूल को कैसे पता कि उसने कब खिलना है? These are just a few of the many mysteries that the science help us unravel. The most
wonderful thing about science is that it is everywhere, from the depth of the ocean to the vastness of outer space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground. Some of the most groundbreaking discoveries have often from unexpected places. ये सब तो बहुत कम मिस्ट्रीज है साइंस को पता करने के लिए। साइंस की सबसे अच्छी थिंग है कि वह सब जगह है, चाहे ओशन की गहराइयों तक, चाहे सबसे बड़ा आउटर स्पेस, चाहे जो किचन में हो रहा है और जो प्लेग्राउंड में हो रहा है। ये कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज है जो हम कभी ना सोचने वाली जगह है। यहाँ 4 फोटो दी गई हैं, एक रेगिस्तान, दूसरी समुद्र के किनारे, तीसरी पानी के नीचे और आसमान की फ़ोटो है। Next, science is like a giant and unending jigsaw puzzle. Every new discovery we make adds another piece to that puzzle. And you know the best thing about this puzzle? There is no limit to what we can discover. Science, every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in a wrong place and needs to be moved. New discoveries often change our understanding of the world. इसमें कहा गया है कि साइंस एक बड़ी और कभी ख़त्म ना होने वाली एक पज़ल है। जब हम कोई भी नई सी चीज़ जानते हैं, वहाँ एक पज़ल में एक पीस जुड़ जाता है। क्या आपको पता है कि इस पज़ल की ख़ास बात क्या है? ये है कि डिस्कवरी की कोई लिमिट नहीं है। हम कोई भी क्वेश्चन पूछ के नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। कभी कभी हमसे गलत पीस लग जाता है पज़ल में और हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं और सही पीस ऐड भी कर सकते हैं। साइंस भी ऐसी ही है। हम कोई भी गलत नॉलेज जो हमें मिली होती है उसे निकाल कर सही नॉलेज वाला पीस हम अपनी पज़ल के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि साइंस बहुत बड़ी एक पज़ल है। As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought-provoking experiments, and see how some of what we will find out is useful in our. जब हम ये बुक पढ़ेंगे, हमें नए नए आइडियाज़ और एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे। हम आगे देखते हैं आगे हमें क्या क्या यूज़फुल थिंग्स मिलती हैं। Next page. Daily lives, and guess what happens as we discover more and more? We start realizing that these ideas are all connected. हम एस्टिमेट लाएंगे, क्षमता लाएंगे कि डिस्कवरी की ज़्यादा से ज़्यादा खुद से पूछेंगे। हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे जो हमने पढ़ा है और हम रियलाइज़ करना स्टार्ट कर देंगे। We will start off by looking at our home planet Earth. It is only planet we know that supports life, and it has an environment that we must protect. There is an amazing variety of life on Earth, plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. हम सबसे पहले अपने प्लैनेट अर्थ से स्टार्ट करते हैं।
हमें सबको पता है कि अर्थ जो सबसे 8 ग्रह में एक ऐसा ग्रह है जो लाइफ सपोर्ट करता है, जहाँ जीवन, और हमारे अर्थ में ऐसा भी सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहता है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, हमारे यहाँ ट्रीज हैं जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हमारे यहाँ वेरियस टाइप की लाइफ्स रहती हैं, जैसे ह्यूमंस, फिशेस, एनिमल्स। जानवर अलग अलग रीजन में रहने के लिए सरवाइव कर लेते हैं, जैसे माउंटेन गोट, उनके हम्प्स होते हैं जहां वो सर्दियों के लिए फूड स्टोर करते हैं। वैसे ही कैमल डेजर्ट के लिए फूड स्टोर करता है। A caterpillar transforms into a beautiful butterfly and many more such observations. How do these plants and animals grow? इसमें पूछा गया है कि आपने कभी सीड से प्लांट को ग्रो होते देखा है? क्या आपने कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती देखी है? और बताओ प्लांट एंड एनिमल कैसे ग्रो करते हैं। और ये पिक्चर दी गई है, प्लांट के ग्रो हो रहा है और कैटरपिलर पत्ते खा रहा है, और गाय की बच्ची गाय का दूध पी रही है। आप साइड पर देखिए, वहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। इसका आंसर पिछले पेज पर है। आप लास्ट 3rd लाइन पर देखिए, एज यू लिखा है, एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल इनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट we will find out is useful in our daily lives। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अभी अगला पैरा, of course to grow we need food to eat and especially in a large and diverse country like India, food is so fascinating. Across the country, we have different cuisines with their many tasty dishes. What are they made of? How do we find out? क्या हमें खाना उगाने की ज़रूरत है और खाने की ज़रूरत है, और इतनी लार्ज कंट्री में जो है इंडिया, फूड बहुत टेस्टी होता है, वो हर एक कंट्रियों में मिलता है। हमें अलग अलग और टेस्टी डिशेस खाने को मिलती हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो कैसे बनती हैं और हमें कहाँ से पता लगता है। जैसे यहाँ 4 डिशेस दिए गई हैं, सरसों का साग, मक्की की रोटी, दाल बाटी चूरमा, डोसा, इडली, सांभर। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। Next page. Along with food, we need water to survive. Water is such a delightful substance. ये इसका मीनिंग है कि खाने के साथ साथ हमें वाटर की भी ज़रूरत है। वाटर बहुत यूज़फुल थिंग है। Have you ever jumped in the puddle when it rained? Do you ever wonder why and how it rains? इसका मतलब है कि आपने कभी पानी से भरे हुए गड्ढे में जंप किया है जो रेन से हो जाते हैं, और यह क्वेश्चन दिया गया है कि रेन कैसे होती है। Have you noticed that water freezes and become ice when we cool it and boils and becomes steam when we heat it? इसका मतलब है कि आपने कभी सोचा है कि जब हम वाटर को कूल करते हैं वो जम जाता है, और जब हम उसको उबालते हैं तो पानी स्टीम भाप बनकर उड़ जाता है। Do you enjoy drinking cool water in summer or showering with warm water in the winter? इसका मतलब ये है कि आपने ठंडा पानी पीना पसंद किया है समर में, और आपने अच्छा लगता है कि आप विंटर में शावर गर्म पानी से लो। How do we
understand hot and cold, whether it is water or our own body. When we have fever, finding out how hot something is can be important. इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि हमें कैसे पता लगता है कि ये वाली चीज़ गर्म है और ठंडी, और यहाँ कहा गया है कि चाहे वाटर हो या हमारी बॉडी हो, जब हमें फीवर हो तो हमें कैसे पता लगता है कि कोई भी चीज़ हॉट है. Next para. Then again, there are so many different things around us. The paper we write on, the metal key, the plastic ruler, and the rubber eraser in our box. इसका मतलब ये है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कागज़ जहाँ पर हम लिखते हैं, कि जिसे हम ताला खोलते हैं, और स्केल जिसे हम मेज़र करते हैं, और इरेज़र जिससे हम इरेज़ करते हैं, और वो कहाँ मिलते हैं? ज्योमेट्री बॉक्स में. The magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेट है वो ज्योमेट्री क्लोज करने में यूज़ आता है, और क्लॉथ हमने वेयर की हुए हैं, और कप में हम दूध पीते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हैं. What are they made of? देख, और क्वेश्चन दिया गया है वो किससे बने हुए हैं. Are they made of different materials? How do we separate different materials from one another? यहाँ कहा गया है कि वहाँ सबके डिफरेंट मटेरियल है, जैसे कोई कॉटन से बना है, कोई मेटल से, और अब बताओ ये हम कैसे सेपरेट करें. Next page, we will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. और इसका मतलब है कि हमारे पास अनएंडिंग, जो कभी ख़त्म ना हो, वो वाली लिस्ट है क्वेश्चन की. हम क्वेश्चन पूछते रहते हैं, वो भी किसके? सब चीज़ों के, और ऑन अर्थ, जो अर्थ में है. और हम जब बुक पढ़ेंगे हम ये चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे. But why limit our questions to the earth alone? We can ask questions on things beyond the sun, the moon, and the millions of stars that shine in the sky. इसका मतलब है कि सिर्फ अर्थ के लिमिटेड क्वेश्चंस क्यों हैं, और हम इसके और भी कुछ चीज़ों के बारे में स्टडी कर सकते हैं, जैसे सन, मून, मिलियंस ऑफ स्टार, मतलब करोड़ों से भी ज़्यादा स्टार्स जो आसमान में हैं. Whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move, and separating the skin of a peanut seed. इसका मतलब है जब भी हम किसी लीव के स्ट्रक्चर जैसे बना है उसके बारे में डिस्कवर करें, या हम कैसे मूव करते हैं उसके बारे में स्टडी करें, और या पीनट सीड के जब स्किन उतर रही होती है उसके बारे में स्टडी करें. We hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry. इसका मतलब है कि हम आस रखते हैं कि इसके सभी चैप्टर, एक एक चैप्टर हमारी सब इंक्यूरी, हमारा जो डाउट है वो क्लियर करेंगे. And hopefully you will have lots of questions in your mind. एंड हम आस रखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इन आवर माइंड. Even though you may have not released, you have already been finding answers to many of your questions. इसका मतलब है कि आपको पता नहीं है कि आपने कई सारे क्वेश्चन के आंसर दे चुके होंगे. Suppose your pen stops writing, what would you do?
इसका मतलब है कि आपका पेन जब लिखना बंद कर देता है तो अब क्या करोगे? You would ask yourself the question, why did my pen stop writing? You might guess that the ink finished. आप इसका मतलब है कि आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि मेरा पेन क्यों रुक गया, फिर आप गैस लगाओगे शायद इसकी इंक ख़त्म होगी है। आप साइड पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन। इसका आंसर नेक्स्ट पेज पर है। पहले हम आगे पढ़ते हैं। You would then test this gas by opening the pen and checking the ink refill. If it is empty, you would know that your guess was correct. इसका मतलब है कि अभी आप गैस को चेक करोगे और पेन को खोलोगे तो रिफिल को चेक करोगे, चाहे वो खाली है तो आपका गैस सही है। But suppose you find that the ink was finished. Now what would you do? सपोज करो कि आपका जो गैस है वो गलत है और इंक फिनिश्ड नहीं है, सो आप क्या करोगे? You would make another guess. Perhaps the ink might have dried up. To test if this guess is correct or not, you will try something else. इसका मतलब है कि आप दूसरा गैस करोगे। आपने नया गैस किया कि शायद इंक ड्राई हो गई होगी, सूख गई होगी, और आपका ये गैस बहुत सही गया और आप नया ट्राई करोगे। This is exactly how science works. इसका मतलब है कि ये है साइंस कैसे वर्क करती है। The way you try to find out why your pen stopped writing in an example of the scientific method. इसका मतलब ये है कि आपने जो ट्राई किया पेन स्टॉप क्यों राइटिंग बंद हो गया था, ये एक एग्जाम्पल है साइंटिफिक मेथड की। नेक्स्ट पेज पर आप जो टेबल देख रहे हो, देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन। का आंसर है, come on next page. Now we read the chart. First point. First, we observe something that we find interesting or we do not understand. Second point, this makes us wonder and perhaps think of a question about it. Third point, then we guess a possible answer to that question. Fourth point, we test this gas through experiments or observations. Fifth point, we then try to analyze the results to see if it accurately answers our question. पहले हम कुछ देखेंगे, कुछ जो समझ नहीं आ रहा और कुछ इंटरेस्टिंग है। दूसरे पॉइंट में हम उसके बारे में सोचेंगे। तीसरे पॉइंट में हम उस क्वेश्चन का गैस करेंगे। चौथे पॉइंट में हम उस गैस को एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में हम अपने जो गैस था उसको चेक करेंगे कि वो एक्यूरेट है कि नहीं। Scientists are people who follow the scientific method to solve problem or to discover new thing. इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट ਜਿਹੜੇ पीपल्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं टू कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। But anyone who follows the scientific method is working like a scientist. इसका मतलब है कि कोई भी साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर सकता है लाइक साइंटिस्ट।
Someone cooking food may be wondering why the dal has splattered out the cooker. Who was there too much water? इसका मतलब ये है कि जब हम कुकर में दाल बनाते हैं और पानी कुकर से बाहर क्यों आ जाता है. Think of bicycle repair person trying to find out why tire is flat. From where did the air leak out? इसका मतलब ये है कि जो बाईसाइकिल रिपेयर करते हैं वो पर्सन कैसे फाइंड करते हैं कि टायर कैसे फटा है. Or an electrician trying to find why a light bulb is not working. Is there some problem with the bulb or the switch? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिशियन जो बिजली के सामान ठीक करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं कि जो लाइट वाला बल्ब है वो ख़राब हुआ है या स्विच ख़राब हुआ है. When we try to ask questions and find out answers, we are all in the way scientists. इसका मतलब ये है कि जब भी हमने कोई क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना होता है हम सब साइंटिस्ट बन जाते हैं और साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं. Come on, next page. So, we all apply the scientific method to some extent. Learning science will evolve our capabilities for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries of universe. इसका मतलब ये है कि हम सभी साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं. इससे हमारी साइंस लर्न करने डिपॉल होता है. हम अच्छी तरीके से लर्न करते हैं और हम मतलब मोर मिस्ट्री और अलग अलग को क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं यूनिवर्स के. And to be able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious and observe our surrounding keenly. और हम साइंस पढ़ने में और अच्छे हो जाते हैं और पहले से हम और क्यूरियस हो जाते हैं क्वेश्चन अपने सराउंडिंग के क्वेश्चन को फाउंड करने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए. And when we are curious, we start posing questions, asking how and why. Just remember, the world is full of things we do not know, things that are waiting to be explored. एंड हम एबल हो जाते हैं कि हम और क्यूरियस हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं कि ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ. इससे पहले आप याद रखना कि हमारी दुनिया बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई है. इसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए. यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ लर्निंग साइंस हेल्प टू फाइंड आउट प्रॉब्लम्स और मिस्ट्री. इसका आंसर लर्निंग साइंस विल डिपॉल आवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स तक है. Next para. Science is really done alone. Scientists across the world work together, often in large teams. So, if you cannot find an answer yourself, ask your friends to help you out. It is always more fun to discover things together. इसमें कहा गया है कि जब हम साइंस के क्वेश्चन फाइंड करते हैं वो रेयरली एक जाने से होता है. साइंटिस्ट जो पूरी दुनिया में हैं वो अकेले कोई भी चीज़ को डिस्कवर नहीं करते. वो आप पूरी टीम के साथ अपनी कोई भी चीज़ को डिस्कस करते हैं. वैसे ही आपको अकेले से क्वेश्चन का आंसर नहीं लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स की भी मदद ले सकते हैं. जैसे नीचे दिया गया है, एक लड़की अपनी फ्रेंड्स की मदद लेकर इस क्वेश्चन का आंसर लभ रही है. Next para. Of course, remember that you will not find answers to all your questions in grade 6.
Do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. आप याद रखना कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर और 6th क्लास का नहीं लग रहा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी साइंस की जर्नी अगले 5 ईयर तक चलेगी, मतलब 5 साल तक चलेगी। नेक्स्ट पेज। Much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. Enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. हम जैसे पिक्चर पे देख रहे हैं कुछ बच्चे बारिश में खेल रहे हैं, ऐसे ही साइंस भी इंजॉइंग फुल है और हमें उसको कभी भी एक्सप्लोर करना बंद ना करो। इसमें कहा गया है कि इंजॉय अपने आप को, अपनी लाइफ को इंजॉय करो जो साइंटिफिक जर्नी है। इसमें कहा गया है कि आप कभी ना रुको, हमेशा सोचते रहो, नई नई चीज़ सीखते रहो, मिस्ट्रीज है यूनिवर्स की और क्वेश्चन पूछते रहो। Are you ready to embark upon the exciting journey of science? Let us get started. इसका मतलब है कि आप रेडी हो अपनी साइंस की न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए। चलो स्टार्ट करें, क्योंकि ये है फर्स्ट चैप्टर है और हमारे 6th क्लास की साइंस की बुक की जर्नी स्टार्ट हो गई है। आप साइड पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी वाइज पर्सन। इसका मतलब ये है कि अच्छे इंसान बनने से पहले हमें वाई पर्सन क्यों बनना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन क्यों पूछने चाहिए। इसका आंसर बुक में नहीं लिखा, मैं आपको बोलकर ही बता देती हूँ। आंसर, अ क्यूरियस माइंड इज वाइज माइंड। A person who asks questions displays critical, analytical mind. Hence, a wise person is said to a wise person. और अभी हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है और आपको ये चैप्टर के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और हम ऐसी स्टडी वाली वीडियो हमारे चैनल पे डालते रहेंगे 5th और 6th क्लास की। इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।